Thank you. Esophagus begins in the neck, starts from the laryngopharynx. Laryngopharynx becomes esophagus at C6 level. Both esophagus, larynx becomes trachea at C6, laryngopharynx becomes esophagus at C6. Passes through the superior thoracic aperture, then into the superior mediastinum, then into the posterior mediastinum where it is the anterior most structure. Then at T10 level it pierces the diaphragm, and at T11 it joins the stomach at the cardiac opening. Diaphragm has three openings, T8, T10, T12. Three openings act differently when the diaphragm descends. Okay? Suppose this is the diaphragm. Here in between is the septum. In the septum is the opening of IVC. The septum, from the septum transversum develops the tendon of the diaphragm. What is it called? Central tendon. What passes through the central tendon? IVC. So what happens is the central tendon fibers are attached to IVC wall. So when diaphragm descends, the IVC wall dilates. When diaphragm descends, IVC wall dilates. For those who hated physics, when diaphragm descends down, there is negative intrathoracic pressure created in the chest. That pressure acts to pull the blood from the lower limb, abdomen upwards. That helps to pull the blood upwards. तो अगर blood ज़्यादा जा रहा है नीचे अंदर तो then IVC needs to dilate. That's why this dilates. Now what happens to the esophageal opening? Esophageal opening is at the level of T10. Esophageal opening, what is going to happen is when the diaphragm descends down, CR माझ्याकडे बघायचं मी शिकवत असताना. When the esophageal, if this goes down, diaphragm goes down, the intra-abdominal pressure increases. Either intrathoracic reduces, abdominal increases. बरोबर की नाही? So then what is going to happen is the contents of the stomach may gush into the esophagus. अगर इधर का प्रेशर बढ़ गया, आपने दबा के खाया है और अब ये डायफ्राम नीचे गया, तो प्रेशर इधर बढ़ गया तो सुप करके एसिड ऊपर आ सकता है. Therefore this opening constricts. IVC opening dilates. Esophageal opening constricts. And the opening of the aorta, which is at T12 level, there is no effect because you cannot compromise on the blood supply. Aortic opening, what all structures pass along with that? Azygous vein and thoracic duct. Okay. So this is clear. Now this esophagus, when it is coming, descending down, what are the three constrictors of the larynx? Superior, middle and inferior. What are the two parts of the inferior constrictor? Thyropharyngeus and cricopharyngeus. This cricopharyngeus acts as a constrictor at the upper end of the esophagus. Cricopharyngeus acts like a constrictor. Therefore, cricopharyngeus blood supply is different. Now supply is different. Sorry, not blood supply. Now supply is different. Okay, all the constrictors of the pharynx are supplied by pharyngeal plexus except cricopharyngeus, which is supplied by recurrent laryngeal nerve. Because बाकी सारे constrictors जब constrict कर रहे हैं, तो cricopharyngeus has to dilate to allow the food to go from pharynx to esophagus. समझ में आ रहा है? Otherwise it remains constricted.
सो दैट आप कुछ भी मुंह में चबाते रहते हैं, च्युइंगम खाते रहते हैं, तो प्रिकोफेरेंजियम बाप रे च्युइंगम खा रहा है, बस गलती से अंदर चला गया। बचपन में आपको डरा है कि नहीं लोगों फैमिली ने? च्युइंगम अंदर गया तो क्या होता है? हाँ, कैंसर, मौत, ये वो। तो प्रिकोफेरेंजियस भी डर जाता है वो सुन सुन के, बोलते बाबा ये आ जाएगा च्युइंगम नीचे। उसके बाद it is crossed by the trachea. But trachea is crossed by arch of aorta. लेफ्ट ब्रोंकस के ऊपर से आर्च ऑफ एओर्टा, फिर ये नीचे जाएगा, इधर डायफ्राम को पियर्स करेगा। ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर वन at the beginning of esophagus, point number 2, where is this? Where crossed by arch of aorta. Point number 3, where crossed by left bronchus, and point number 4, where it pierces the diaphragm. There are 4 constrictions on the esophagus. मृदुला कशाला तुला माहिती पाहिजे ते constrictions? Any reason? तो माहित नसेल तर उभा राहू नकोस। राइल्स ट्यूब जब डालते हैं, जब when a person is not able to eat and gulp food, maybe due to cancer, maybe due to severe esophagitis, ओके, किसी ने ऐसा ही सुइसाइड करने का कैसा बराबर से मालूम नहीं और एसिड पी लिया, जल गया इसोफेगस, अभी खा नहीं सकता कुछ, फिर राइल्स ट्यूब डालते हैं यहाँ से। दैट राइल्स ट्यूब व्हेन यू आर पुटिंग, और राइल्स ट्यूब पे मार्किंग्स होते हैं, राइल्स ट्यूब पे मार्किंग्स होते हैं। फर्स्ट मार्क, नाउ दैट राइल्स ट्यूब यू विल बी, आता मी हे ना जरासं वाकडं तिकडं काढतोय, ये माउथ है, माउथ में से राइल्स ट्यूब डाल रहे हैं, माउथ में से राइल्स ट्यूब डाल रहे हैं स्टमक में, बिकॉज वो खा नहीं सकता है, तो राइल्स ट्यूब डालते हैं, उसके ऊपर फनल रहते हैं, फनल में डाल के दिखाते बाबा कलिंगड़ का जूस पिला रहे हैं, डायरेक्ट अंदर, इधर कुछ भी नहीं। सोचो इतना पेनफुल रहेगा, कुछ भी रहेगा, मतलब कलिंगड़ का जूस से लेके ब्रांडी विस्की तक डायरेक्टली पेट में। अभी 6 इंचेस पे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा जब आप डालते रहोगे ना राइल्स ट्यूब मुंह में से अंदर, 6 इंचेस पे प्रिकोफेरेंजियस आ जाएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस तो थोड़ा पुश करेंगे, सेकेंड कम्स एट 9 इंचेस, थर्ड कम्स एट 11 इंचेस एंड फोर्थ कम्स एट 15 इंचेस। तो बताओ इसोफेगस का लेंथ कितना है? 10 इंचेस, बराबर ना? 6 इंच से चालू हुआ, 6 to 15 कितना होता है? तो यहाँ पे हमको एक ऐड करना है, ये हो गया सुपीरियर पोस्टीरियर T10, इसमें एक लाइन खाली ऐड करो, एंटर्स एब्डोमेन। इसलिए इसोफेगस कहीं पे भी नहीं आता है, बिकॉज उसको किधर डालने का, नेक में डालने का, लॉन्ग क्वेश्चन, थोरैक्स में डालने का, एब्डोमेन में डालने का। पेपर 2 इज एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब, पेपर 1 इज हेड नेक फेस थोरैक्स एंड अपर लिम्ब, बराबर? इसके लिए इसोफेगस नहीं आता है कभी क्वेश्चन, बिकॉज बच्चे कोर्ट में जाएंगे ना, आपने एब्डोमेन में पूछा उतना इतना सा तो है एब्डोमेन, थोरैक्स में पूछा तो हम बोलेंगे वो एब्डोमेन में जाता है ना, फिर हम लिखें कि नहीं लिखें? इसके लिए हम लोग डालते ही नहीं उसको, कौन झगड़ा करेगा इन लोग से? बट आ सकता है, थोरैक्स में आ सकता है, एंड ये आपको थर्ड ईयर में पूछते हैं, तब जाके एनाटॉमी की किताब मत खोला, अरे क्या था ये बता ही नहीं हम लोग को। इसके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ। ऐसा गाली दिया ना किसी ने ट्विटर पे वगैरह, ऐसा लिखा कि सो डिस्गस्टिंग दैट टुडे आवर मेडिसिन टेक लेक्चरर आस्क्ड अस
व्हाट आर दोस 4 कंस्ट्रक्शंस, नोबडी इन एनाटॉमी टॉट कि मैं उसके कमेंट में लिंक डाल दूंगा, मैंने सिखाया था। ओके, सो दीज आर द, तो ये रेजिस्टेंस आता है 9 इंच पे, 11 इंच पे, 15 इंच पे। यू विल फील वो मार्किंग्स रहते हैं राइल्स ट्यूब पे। मेडिसिन सर्जरी के प्रैक्टिकल्स में पूछते हैं ये मार्किंग्स क्या है। राइल्स ट्यूब देंगे हमें 6, 9, 11, 15, तो यू नीड टू नो दिस। सब कुछ अभी प्रीलिम के हिसाब से मत सोचो, अभी ऐसे मत बोलो कि सर मेडिसिन का हम तभी का तभी देख लेंगे, अभी आप प्रीलिम में क्या आने वाला है वो बताओ, ऐसा नहीं चलता है। ओके, अनदर थिंग अबाउट इसोफेगस इज इट्स ब्लड सप्लाई। इट्स upper part receives blood supply from inferior thyroid artery, middle part receives blood supply from aorta, lower part receives from the left gastric artery. इसोफेगस एकदम यूनिक है, उसका अपर पार्ट द मसल इज striated, लोअर पार्ट मसल इज स्मूथ, मिडल 1/3 मसल इज मिक्स एंड लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस, the lowest part is the site of portocaval anastomosis. Some veins from the lower part drain into systemic blood, some drain into portal. Portal मतलब यहाँ से venous drainage liver को जाएगा और कुछ IVC को जाएगा। इसलिए liver failure में यहाँ पे in liver failure the veins over here dilate. That is called as esophageal varices, varicose veins, varices, dilated veins. और ये जब burst होते हैं तो आदमी खून की उल्टी करने लगता है, हेमाटोमेसिस, हेमाटोमेसिस। पोर्टल हाइपरटेंशन वाला पेशेंट अगर खून की उल्टी कर रहा है, that means यमराज हैज कम, वो घूम रहा है आजू बाजू में, क्या अभी बस कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम और, बिकॉज वो सी फर्स्ट थिंग दैट पर्सन मस्ट हैव ड्रंक लॉट ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज लिवर फेलियर, बिकॉज ऑफ लिवर फेलियर दिस इज ओके। इसोफेगस एप्लाइड एनाटॉमी, फर्स्टली स्टार्ट विथ व्हाट? एप्लाइड एनाटॉमी, कंजेनाइटल एनोमलीज, टॉप, congenital anomalies, stop. Then medical, medical में क्या लिखोगे? Sorry, second is always investigation. Investigation में क्या लिखोगे? Esophageoscopy. Then barium swallow. बेरियम स्वॉलो, मतलब स्वॉलो करते करते एक्सरे लेते हैं। रेडियोलॉजी वाले बहुत डेंजरस लोग हैं, बोलेंगे ये जरा पियो, अब चले जाएंगे एक्सरे पे देख रहे कि बाबा क्या कर। और कुछ जैसे जैसे एब्डोमेन में जाएंगे ना, मैं आपको और सिखाऊंगा। मिक्चुरेटिंग यूरेथ्रोग्राम भी होता है, बोलेंगे जरा बाथरूम करो, मेरे को डर ही लगता है रेडियोलॉजी के बाथरूम में जाने, चिक करके एक्सरे निकालते हैं, डाई देंगे, पिलाएंगे, बोलेंगे बैठो, बाथरूम को लगेगा तो बताओ, बाथरूम करते करते एक्सरे निकालते, मिक्चुरेटिंग यूरेथ्रोग्राम। इधर क्या है? बेरियम स्वॉलो। जो एब्डोमेन के इसके लिए जाता है ना, बेरियम स्वॉलो, फिर बेरियम मील, फिर 4 घंटा बिठाते, स्टमक में 4 घंटा फूड रहता है, उसके बाद बेरियम फॉलो थ्रू फॉर स्मॉल इंटेस्ट, पूरा दिन उधर ही बैठने का रेडियोलॉजिस्ट के पास। इन्वेस्टिगेशन बेरियम स्वॉलो, बेरियम स्वॉलो, बेरियम मील इज फॉर स्टमक, स्वॉलो, स्वॉलो करते करते एक्सरे। मेडिकल प्रॉब्लम इसोफेजाइटिस, वेरी कॉमन, मेडिकल स्टूडेंट्स एग्जाम गोइंग, छाती में जड़, छाती में जड़, कितने लोगों को होता है? रेंटैक पैंटॉप, 3rd ईयर तक चालू हो जाता है आपका इसोफेगाइटिस। सर्जिकल, this Riles tube, you should know the 4 because they put the Riles tube.
and last is cancer or malignancy. Esophageal malignancy is very common because any chronic inflammation leads to cancer. इसलिए ओरल कैंसर में भी टॉक अबाउट शार्प टूथ है और बार बार चीक बाइट हो रहा है, बार बार रोज चीक बाइट हो रहा है, वो शार्प टूथ से बेटर उसको जाके उसका शार्पनेस कम करें, because that can lead to cancer. Daily inflammations lead to carcinoma in the future. इसके लिए लंग कैंसर क्यों होता है? डेली स्मोक करते, डेली इंजुरी टू द लंग, देयर इज कैंसर. So that is about esophagus. ये मेरे ना लिस्ट में ही नहीं था आज के. मैं तो